Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing exercise. Sorry, we are doing the chapter, we have started with a new unit, that is unit number 9, okay? And the unit number 9 was on mixed bags. So I have already told you the meaning of mixed bags. So mixed bag का मतलब क्या होता है? So in this unit you will get the different topics related, different chapters related to the different topic. Okay? इससे पहले हमने जितने भी यूनिट्स किए थे तो एवरी यूनिट वाज रिलेटेड टू सम ऑफ द टॉपिक बट दिस मिक्स बैग यूनिट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स व्हाई बिकॉज इन दिस मिक्स्ड बैग सो मिक्स्ड बैग मीन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो इसमें अलग अलग टॉपिक के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर्स मिलेंगे. ओके, सो टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अवर सेशन इज क्विज योरसेल्फ टू, given at page number 48. So class, all of you are advised to open your books at page number 48, that is quiz yourself. So I'm just writing the topic here, that is quiz yourself. Quiz yourself 2, given at page number 48. So this is the topic of our today's session, quiz yourself. So the meaning of quiz, as I have told you earlier also, but I just give you a small recall also. So quiz का मतलब क्या होता है? So quiz is a bunch of questions in which you get the answers from the different topics. So every question is different from each other और every question has its own different topic. तो हर question जो quiz में होता है that is different from the previous one. हर एक question अपने दूसरे question से, जो पहले जो question है ये बात के question से अलग होता है. ओके, सो इन दिस क्विज आपने देखा होगा, कभी क्विज कंपटीशन अटेंड भी किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि हर जो चैप्टर है हर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. सम आर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, some are related to the current activities, some are related to the politics, some are related to the entertainment industry. Okay, so this is also one of the topic from your book, that is quiz yourself 2, given at page number 48. So today we are going to start with this unit only. So let's begin with the question. Okay, so here the questions are given in the blank form. तो आपको यहाँ पे जो questions दिए हैं that are given in the blank form. चलिए, so starting with the first one. Which Indian cricket player is nicknamed चीकू? ओके, सो हमारे इंडियन क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं उनमें से कौन से क्रिकेट प्लेयर का जो निक नेम है, निक नेम मीन्स जो हम घर में नाम बुलाते हैं. सो विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर इज निक नेम एज चीकू? सो दैट इज विराट कोहली. तो विराट कोहली का जो घर का नाम आप बोल लीजिए, हम कहते हैं ना मम्मी पापा में पेट नेम, जिसको हम बोलते हैं पेट नेम. ओके, सो योर नेम मस्ट बी, आपका घर में नाम गगन है. ओके, सो स्कूल में नाम इट इज गगन, बट इन द हाउस एवरीबडी कॉल्स यू गग्गू. ओके, सो दिस इज द गग्गू इज द पेट नेम दैट योर पेरेंट्स और दैट योर रिलेटिव्स, दैट योर फ्रेंड्स यूज टू कॉल यू टू शो देयर लव फॉर यू. तो दिस जो निकनेम्स होते हैं ये एक मोस्टली एक वर्ड्स होते हैं, नेम्स होते हैं जो कि हम प्यार से किसी को बुलाते हैं. ओके, सो कुछ के मम्मी पापा बुलाते हैं बाबू बुलाते हैं, बेटा बुलाते हैं, राजा बुलाते हैं. ओके, सो वैसे ही अलग अलग नाम हैं, वैसे ही हमारे जो क्रिकेटर हैं इनका भी एक घर में नाम है एंड द ही इज निकनेम्ड एज चीकू. इनका घर का नाम क्या है? चीकू. सो he is also the captain of our international Indian cricket team. So he is विराट कोहली. जो विराट कोहली हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, his nickname is चीकू. इनको घर में क्या बुलाया जाता है? चीकू. ओके, सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज which Indian cricket player is nicknamed चीकू? That is विराट कोहली. So the answer of the first one is विराट कोहली. V-I-R-A-T, Virat Kohli. So Virat Kohli is nicknamed as Chiku.
Okay, moving next to the second one. Now let's move to the second question of the same unit, sorry, of the same topic. So what are Firefox, Opera, Chrome, Safari and Explorer types of? So now we are talking about some of the देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, सफारी एंड एक्सप्लोरर. तो ये किस चीज़ के नाम है? सो ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ वेब ब्राउजर्स. ये सब किसके नाम है? दीज आर द नेम्स ऑफ वेब ब्राउजर्स. तो जो वेब ब्राउजर होते हैं, वेब ब्राउजर मीन्स जैसे कि आप अपने फ़ोन में सर्च करते हैं, गूगल जहाँ आप लिखते हैं जाके, सो दैट इज़ अ वेब. स्पेशली और मोस्टली वी यूज़ गूगल क्रोम. हम ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं. ओके, सो वी यूज़ वेब ब्राउजर्स लाइक I myself commonly use Google Chrome as a web browser. ओके, सो देखिए ये जो फायरफॉक्स हैं, ओपेरा है, क्रोम है, सफारी है एंड एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो दीज आर द नेम्स ऑफ द वेब ब्राउजर्स जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ सर्च करती हैं. ओके, सो सपोज यू वांट टू वॉच अ वीडियो, ओके, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब. ओके, तो आप क्या करेंगे? या तो आप जब आप स्कूल की साइट खोलते हैं तो उससे पहले आपके डायरेक्ट का APS वारने से लिखते हैं? नो, सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोलेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन गूगल क्रोम. तो गूगल क्रोम के ऊपर लिखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी. ओके, तो जहाँ पे आप वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी लिखते हैं, दैट इज़ द ब्राउज़र. तो जो ब्राउज़र है दैट कनेक्ट्स यू विद द डिफरेंट साइट्स. ओके, जो ब्राउज़र है वो आपको अलग अलग साइट से कनेक्ट करता है. ठीक है, इंटरनेट साइट से कनेक्ट करता है. Okay, so if you are searching for any kind of site, you have to first of all open a browser. और ब्राउज़र के जाके ऊपर जाके आपको जो भी ओपन करना है, जो भी साइट आपको ढूंढनी है, पहले आप वो लिखेंगे. ओके, सो दिस फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, these are the types of web browser. So the question is, what are Firefox, Opera, Chrome, Safari and Explorer types of? So these all are the types of web browser. So the answer of the second one is web browser. WEB, web browser. BROWSER. So these all are the types of web browser. Third one. Okay. Which team other than the Gujarat Lions made its debut in the IPL 2016? Okay, so कौन सी, ठीक है, ये जो हमारी टीम है, व्हाट वी कॉल इट, IPL. ओके, सो जो IPL मैचेस होते हैं दैट इज़ इंडियन प्रीमियर लीग. ओके, सो इंडियन प्रीमियर लीग जो हमारा एक सीरीज़ होती है, ओके, जो कि इस साल कहाँ हुई थी, दैट वॉज हेल्ड इन दुबई. तो दुबई में जो दुबई, शारजहाँ, अबू धाबी, तो यहाँ पे अलग अलग ग्राउंड में ड्यू टू कोविड-19. ओके, सो देखिए विच टीम अदर देन गुजरात लायंस मेड इट्स डेब्यू इन द IPL 2016. सो आई थिंक IPL पिछले काफ़ी सालों से चलता है, 10, 11, 12 सालों से चलता हुआ आ रहा है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर्स. तो ये बहुत सालों से चलता था एंड इट्स एन एनुअल गेम आप कह सकते हैं, या एनुअल सीरीज़ आप कह सकते हैं, जो एनुअली मतलब हर साल एक बार होती है. ओके, सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सो विच टीम. ओके, तो देखिए जो 2016 में जो IPL हुए थे उसमें 2 न्यू टीम्स इंट्रोड्यूस हुई थी. सो 2 न्यू टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो वन वॉज गुजरात लायंस, तो एक टीम का नाम था गुजरात लायंस. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड टीम दैट हु हैज़ डेब्यू मीन्स मतलब फर्स्ट टाइम वो टीम IPL में आई थी. ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट टीम? सो दैट इज़ राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स. Okay, so this is the second team that has made their debut in the IPL 2016. So IPL 2016 में the 2 teams have made a debut. तो 2 teams ने debut किया था. The first one was गुजरात लायंस. गुजरात लायंस पहली थी. Second कौन थी? That was Rising Pune Super Giants. So that was the name of the second team that has made the debut in the IPL 2016. So the answer of the third one is Rising Pune Super Giants. Rising, RISING,
Rising Pune Super Giants. SU Rising Pune Super Giants. SUPER Super Giants. GIANTS. Rising Pune Super Giants and Gujarat Lions has made the debut in the IPL 2016. तो 2016 में जो IPL हुआ था उसमें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लाइंस ने क्या किया था, डेब्यू किया था. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द IPL. चलिए, डेब्यू का मीन्स ही फर्स्ट टाइम होता है. ओके, चलिए, द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज नंबर्स इज टू 9287 as a tail is to Gillette. Okay, so now this is like a reasoning question that we are going to do here. So just write these three one, and so that I will tell you the answer of the fourth one. So fourth one question is related to some reasoning. So that I have to tell you by just giving you the proper explanation. So the answer of first one is Virat Kohli, second one is web browser, and the third one is Rising Pune Super Giants. So let's move to the question number 4. Okay, and this question number 4 is related to the reasoning. तो ये reasoning related question है. देखिए, the question is which of these numbers is to 9287 as tail is too late. Okay, तो देखिए यहाँ पे question क्या है, that if we write the number 9287, this number means tail, T-A-S-T. This number means tail, T-A-L-E. Okay, so 9287 means tail. Now, so the question, the answer you have to do give is, so what is the meaning of late? देखिए, इसको हम थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि इससे हमें ये देखना है. ठीक है, 9287. ओके, सो देखिए वो कह रहे हैं टेल का मतलब है 9287. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट? NATE. इसका मतलब क्या होगा? So if the meaning of tail is 9287, what will be the meaning of late? So that means that they are representing this alphabet, this word, alphabetical word in numeric numbers. तो ये इस alphabetical word को numeric number में क्या कर रहे हैं, explain कर रहे हैं. Okay, now you have to convert this alphabet, you have to convert this word late into a numeric number. Okay, so by following the code that is being followed here, इस कोड को, इसके सीक्रेट कोड को फॉलो करते हुए you have to give the answer of this one. इसका सीक्रेट कोड देखिए हम कैसे निकालेंगे. सो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, T means 9, A means 2, L means 8, E means 7. T का मतलब है 9, A का मतलब है 2, L का मतलब है 8 and E का मतलब है 7. Okay, so as you can see, the words in the alphabets that are being used in these two letters, these two words are same. इन दोनों वर्ड्स में जो भी अल्फाबेट्स यूज हुए हैं वो बिल्कुल सेम है. T है यहाँ पे तो यहाँ पे भी है, A है यहाँ तो यहाँ भी है. ओके, L यहाँ है तो यहाँ भी है, E यहाँ है तो यहाँ भी है. So that means the alphabet that we are using in these two words are same, but while observing the pattern we have to give the answer of this one as well. Okay, so L means 8. इसको ऑब्जर्व करते हुए अभी आपको लिखना है. L means 8, A means 2, A means 2, T means 9, T means 9, T means 9. Last is E means 7, E means 7. So the secret code of writing tail was 9287 or 9287. Same like by using the same code we write late as 8297.
8297 इज द सीक्रेट फॉर कोड फॉर द वर्ड लेट. तो लेट के लिए जो हम सीक्रेट कोड यूज करेंगे दैट इज 8297. ओके, सो द आंसर ऑफ द फोर्थ वन विल बी, the question was which of these numbers is 29287 as tail is too late. That is 8297. That is 8297. So this is the answer of the fourth one. Okay, 8297. चलिए next fifth one. What is the capital of France? तो जो हमारा फ्रांस है, हमारा नहीं एक्चुअली, जो फ्रांस है, सो फ्रांस इज द नेम ऑफ अ कंट्री. सो फ्रांस इज अ कंट्री. सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? दैट इज पेरिस. सो द नेम ऑफ, सो द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस. तो पेरिस कहाँ की कैपिटल है? फ्रांस की. ओके, दैट इज पेरिस. PARIS. द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस. ओके, अब देखिए पेरिस में जो दो तीन जो चीज़ें मशहूर हैं, द फर्स्ट वन इज द लॉवरे म्यूजियम एंड द सेकेंड वन इज द एफिल टावर. So these are the two beautiful things, and the Eiffel Tower is one of the beautiful man-made structure that is located in Paris. Okay, and this Eiffel Tower is a symbol of love. Okay, so that is the people, they go there also for showing such a beautiful show of lights on the Eiffel Tower. And this Eiffel Tower is named after the engineer and the designer who मतलब जो जिस इंजीनियर और डिज़ाइनर ने उस एफिल टावर को डिज़ाइन किया था, उन्हीं के नाम पे उस टावर का नेम रखा है. सो द नेम ऑफ द engineer was Gourville Eiffel. As some name was this. His name was Gourville Eiffel. So after his name, the name of that Eiffel Tower is given. That is Eiffel. तो उनका जो सर नेम था एफिल, उसी के नाम पे इस एफिल टावर को नेम दिया गया है. दैट इज एफिल टावर. ओके, सो द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस. Moving to the sixth one. What kind of equipment is Hubble Space which was launched by NASA? Okay, तो देखिए हबल स्पेस नाम का एक इक्विपमेंट नासा ने लॉन्च किया था. सो व्हाट इज दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट? वो क्या चीज़ है? दैट इज द नेम ऑफ अ टेलीस्कोप. ओके, सो नासा ने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था हबल स्पेस. सो व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोप? देखिए जो टेलीस्कोप्स है दैट आर मेनली यूज्ड, कई लोगों को शौक भी होता है कि वो टेलीस्कोप अपने घर में रखते हैं. दे वांट टू सी द स्टार्स इन द नाइट, दे वांट्स टू सी द प्लैनेट. सो यू कांट सी द प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल टेलीस्कोप. तो अब जो टेलीस्कोप होता है उसके देखिए देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ टेलीस्कोप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत ही महंगे टेलीस्कोप्स आते हैं. ठीक है, जो नॉर्मल टेलीस्कोप्स हम देखते हैं विद दैट यू कांट सी स्टार्स एंड वहाँ से आप दूर तक देख सकते हो, बट यू कांट सी स्टार्स एंड प्लैनेट्स विद दोज टेलीस्कोप. देयर आर सम, ये जो हबल टेलीस्कोप है, दिस हबल टेलीस्कोप दैट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय नासा, जो कि नासा ने लॉन्च किया था. दिस इज वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव प्लस वेरी कहते हैं जिसे हम बहुत दूर तक. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही दूर तक देखने वाला एक टेलीस्कोप है. ठीक है, सो सम ऑफ द पीपल दोज हु लव टू सी द स्टार्स, ओके, तो वो क्या करते हैं, इतने महंगे इफ़ दे आर इफ़ इट इज़ अफोर्डेबल फॉर देम, तो वो क्या करते हैं, ये टेलीस्कोप्स खरीदते सो दैट दे कैन सी द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स ड्यूरिंग द नाइट. ओके, सो फॉर दैट जो नासा ने एक इक्विपमेंट लॉन्च किया था एंड दे हैव नेम्ड इट एज हबल स्पेस. Okay, so now in this question you have to tell that what is the name of that what is the kind of that equipment was. तो वो किस kind का equipment, किस तरह का वो equipment था. So that was a telescope. Okay, so the Hubble space is the name of a telescope that was being launched by NASA. So the answer of the sixth one is telescope. TELESCOPE. So telescope is the name of, the Hubble space is the name of the telescope that was being launched by NASA. NASA पता है ना क्या है? NASA is the biggest space station. Okay, ये एक बहुत बड़ा space station है. The full form of NASA is National Aeronautics and Space Administration. Okay,
ओके, ये अमेरिका का सबसे बड़ा है, और बहुत सारे जो बड़े, देखिए इंडिया हैज़ ऑल्सो वेरी बहुत अच्छे अच्छे, हमारे पास भी इसरो, ओके, जिसने कि मंगलयान भेजा था, ठीक है। सो वी हैव मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में एट द लोएस्ट कॉस्ट में जो मार्स पे सैटेलाइट भेजने वाली कंट्री कौन बनी? हमारी इंडिया। सो वी आर द फर्स्ट कंट्री हु हैज़ एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन इट्स फर्स्ट स्टैम्प एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट। उसके अलावा पहले बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने ट्राई किया, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। ओके, सो नासा इज वन ऑफ द बिगेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल, और यू कैन से द स्पेस एजेंसी, ओके, दैट्स वर्क फॉर द स्पेस, ठीक है। स्पेस में क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में वो खोजबीन करते रहते हैं। ओके, सो the name of the equipment launched by NASA, okay, was a telescope which was named at Hubble Space. Next is the 7th one. In which movie series will you find the characters Wolverine, Magneto and the Storm? So these are the names of some of the characters from a Hollywood movie. तो हॉलीवुड की एक मूवी है जिसमें कि ये नेम है 3 कैरेक्टर्स के। सो द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज वॉल्वरिन, Magneto and the Storm. So these are the name of the famous characters of that movie, and you have to name the movie. So the name of this movie is X-Men. आपने X-Men, that is a superhero movie. Okay, X-Men एक superhero movie है, and the main characters of this movie is Wolverine, Magneto and the Storm. Okay, it's a superhero movie, and now as you can see, now we have moved to the question of the entertainment. Okay, so the answer of the 7th one is X-Men. Okay, the answer of the 7th one is X-Men, M-E-N. So this is the name of a superhero movie. Just write it down. यहाँ पे clear नहीं दिख रहा, chalk थोड़ी properly working है. X-Men. Moving to the 8th one. Okay, now the question number 8 is, who was the leader of the pack of wolves which brought up Mowgli in the Jungle Book? Okay, so the Jungle Book movie, you must be aware of it. Every one of you must be aware of it. तो most of बच्चों की जो favorite movie है, ठीक है, द जंगल बुक, ओके, एंड दैट इज द रीमेक है। ओके, जो फर्स्ट और पहले क्या शुरू में एक कार्टून आता था बहुत पहले, व्हेन आई वाज अ किड, एट दैट टाइम अ कार्टून केम द जंगल, ओके, तो उसी के ऊपर एक मूवी बनी है द जंगल बुक। ओके, एंड इन दिस मूवी I hope that most of you must have watched it. Okay, so in this movie they have shown a story of a boy who was named as Mowgli, जिसका नाम था Mowgli. So when he was born, after that he was somehow left by his parents in the jungle. Okay, but a pack of wolves, they found that boy in the jungle when he was a newborn. तो उन्होंने जब वो न्यूबॉर्न को देखा जंगल में, उसको अपने साथ ले गए। तो इन स्पाइट ऑफ किलिंग देम, सो उन्होंने क्या किया, जो उनका जंगल का जो वॉल्व्स का जो सरदार था, उन्होंने उस मोगली को एज अ, मतलब दो ही वॉज अ किड ऑफ अ, चाहे वो एक इंसान का बच्चा था, बट उसने क्या किया, उन्होंने अपने मोगली को अपने बच्चे की तरह पाला, उसको सिखाया सब कुछ, डिफरेंट थिंग्स दैट ही लर्न। सो नाउ द मोगली वो बिकेम वेरी फैमिलियर टू द एनिमल्स of the jungle, okay, and he was loved by the most of the animals of the jungle, okay, but later on he was, बाद में उनका एक दुश्मन था, okay, so that was the villain of the movie, that was शेर खां. He always wants to kill the Mowgli because he believed that he is not allowed to live between them because he is a human being and we are the animals. Okay, so this is a movie that is a very beautiful movie, okay, for the kids. Okay, if you have not watched it, kindly go and watch. Not go, just watch in the TV because mostly TV पे आती रहती है ये movie, and that's a very beautiful movie. Okay, so who was the leader of a pack of wolves which brought up Mowgli in the Jungle Book? तो द जंगल बुक मूवी में तो जो वॉल्व्स थे जिन्होंने मोगली को पाला था, तो उनके लीडर का नाम क्या था? सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द लीडर ऑफ द पैक ऑफ वॉल्व्स हु बॉट मोगली? तो दैट वाज अकेला. सो अकेला जो वॉल्व का सरदार था, उन भेड़ियों का जो सरदार था, उसका नाम क्या था? अकेला. तो उसने क्या किया था? मोगली को पाला था. Okay, so the name of the who was the leader of the pack of wolves which brought up Mowgli in the Jungle Book was Akela. The spelling of Akela is A-K-E-L-A.
So Akela was the leader of the pack of wolves in the movie The Jungle Book. ठीक है. Now moving next to the 9th one. So before that, just note it down in your books. Answer of 4th is 8297, 5th is Paris, 6th is Telescope, 7th is X-Men, and the 8th one is Akela. Okay? चलिए. Now moving next to the 9th one. चलिए 9th. Okay. Which sports is Sebastian Vettel associated with? ओके जो सेबेस्टियन वेटल है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सो सेबेस्टियन वेटल इज एसोसिएटेड विद फार्मूला 1. सो व्हाट इज फार्मूला 1? ये फार्मूला 1 क्या है? दिस इज अ नेम ऑफ स्पोर्ट्स, बट कौन सा स्पोर्ट? दैट इज अ कार रेसिंग. तो फार्मूला 1 इज द नेम ऑफ अ कार. ओके, सो फार्मूला 1 एक कार का नाम है. दिस इज द फास्टेस्ट कार दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर रेसिंग. ओके, जो कि रेसिंग में यूज़ की जाती है. एंड आई थिंक दिस सेबेस्टियन वेटल बिलोंग्स टू द जर्मनी. ओके, सो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फार्मूला 1 कार रेसर. ओके, एंड ही हैज़ वॉन वेरियस चैम्पियनशिप्स in the Formula 1 car racing as well. Okay, so Sebastian Vettel is associated with Formula 1 car racing, or you can just write it down as Formula 1. Okay, so the question was which sport is Sebastian Vettel associated with? That is Formula 1. So the answer of the 9th one is Formula 1. 9th one is Formula 1. FORMULA, Formula 1. So Sebastian Vettel is associated with the car racing, that is Formula 1. Okay, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं. Formula FORMULA, Formula 1. Okay, moving to the 10th one. So the 10th is which school of witchcraft and wizardry does Harry Potter go to? तो witchcrafts और wizardry के कौन से स्कूल में जो हैरी पॉटर है वो गए थे? तो हैरी पॉटर आई थिंक सबने देखी होगी. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी फॉर द किड्स. ओके, सो दिस हैरी पॉटर मूवी इज़ बेस्ड ऑन द नॉवेल. ओके, ये एक नॉवेल में जो J.K. रोलिंग ने लिखी थी, उन्हीं की नॉवेल के ऊपर ये एक बुक लिखी गई है. ओके, सो दिस स्टोरी दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु वेंट टू अ हाउस, जो कि एक जादुई स्कूल में जाता है. ओके, एंड द नेम ऑफ दैट स्कूल वॉज हॉगवर्ट्स. सो हॉगवर्ट्स हियर जहाँ पे उसको बहुत सारे उसके दोस्त भी मिलते हैं, दुश्मन भी मिलते हैं. ओके, द टीचर्स दे लव हिम बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कपल ऑफ इन द जो जादू की दुनिया में एक बहुत ग्रेटेस्ट कपल थे, उनका बेटा था. तो ही वॉज वेरी लव बाय द वेरियस टीचर्स ऑफ दैट स्कूल. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्कूल? सो द नेम ऑफ दैट स्कूल इज हॉगवर्ट्स. ओके, तो जो हॉगवर्ट्स है, वो जो हैरी पॉटर जिस स्कूल में पढ़ने गए थे, दैट इज द नेम ऑफ द स्कूल, दैट इज हॉगवर्ट्स. आंसर ऑफ द 10th वन इज हॉगवर्ट्स. HOGWARDS, Hogwarts. 11th one. Who became the first woman badminton player from India to hold the world number one ranking? तो इंडियन बैडमिंटन टीम में से, इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम में से कौन सी ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था इन द वर्ल्ड? सो द हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया? इंडिया में से कौन सी पहली वुमेन बैडमिंटन प्लेयर थी जिन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी इन बैडमिंटन? सो शी इज साइना नेहवाल. शी इज Saina, SAINA. She is Saina Nehwal. She is Saina Nehwal. Moving to the 12th one. What is the name of the mascot of the 2016 Euro Cup? तो 2016 का जो यूरो कप हुआ था, उसमें मैस्कॉट का क्या नाम था? सो द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ 2016 यूरो कप वॉज सुपर विक्टर.
सो मैस्कॉट्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द कार्टून करेक्टर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी गेम्स में एज अ सिंबल, ठीक है ना। हम उसको ये नहीं कह सकते दीज आर द लोगो है या कुछ सिंबल है, तो दिस जस्ट नॉट अ लोगो, नॉट अ सिंबल, इट जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो जब मैस्कॉट्स एक कार्टून फिगर्स होते हैं जो मोस्टली जो गेम्स में, ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो या कोई भी कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो उसमें मोस्टली मैस्कॉट्स यू कैन सी। Okay, so what is the mascots of the 2016 Euro Cup? That is Super Victor. That is Super Victor. So this was the name of the mascot of 2016 Euro Cup. WI. Super Victor was the mascot of the 2016 Euro Cup. Okay. So these are the answers from the 9 to 12. Okay. So this was our today's session class. So I hope that you love the session. Okay, so I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.